Hello, good evening, student. Good evening, sir. Am I audible clearly? Yes, sir. Okay. So all of you get join fast so that we can start. So where is Amrita? Amrita कहाँ पे है? So in the previous lecture, what we have started? We have started our we have just finished our chiral pole approach. Now the second principle that we are going to discuss about is that the asymmetric catalysis. So we have to discuss the next point, that is asymmetric catalysis. Okay, asymmetric catalysis के अंदर हमें क्या करना है, वो सारी चीज़ों को डिस्कस करना है. ठीक है, तो कैटालिसिस में हमारे पास विच आर द फेमस कैटलिस्ट दैट आर यूज्ड, उसके बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है. ठीक है, तो कौन कौन से कैटलिस्ट हैं जिससे हमें एसिमेट्रिक सेंटर मिलता है, एसिमेट्रिक और कायरल सेंटर हमें मिलता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. ठीक है, तो आपको सबको क्या करना है, सिंपली सारे स्टूडेंट को क्या करना है, सबको ये सारे पॉइंट्स को आइसोलेट करके रखना. अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास कायरल पुल अप्रोच हो गया, एसिमेट्रिक कैटालिसिस अप्रोच है, सबको एक में मर्ज नहीं करना है, सारी चीज़ें आपको अलग वे में सोचना है. ठीक है, तो दिस इज़ द सिंपल डिफरेंस, तो दैट डिफरेंस यू शुड नो. ठीक है, तो एसिमेट्रिक, हम यहाँ पे क्या बात करने वाले, एसिमेट्रिक कैटालिसिस. तो जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज़ एसिमेट्रिक कैटालिसिस के बारे में बात करने वाले. एसिमेट्रिक कैटालिसिस. So the asymmetric catalysis, in this asymmetric catalysis, what is this? First of all we should identify this. First of all we have to define this particular principle. So what will be this principle, according to which principle this principle is based on what, ये हमें देखना है यहाँ पे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कायरल रिएजेंट. So chiral reagent is nothing but a chiral reagent. A chiral reagent, you know. So in that particular chiral reagent, we have a chiral center. So similarly, if we are using chiral catalysis, if we are using chiral catalysis, so that chiral catalyst, it will what? It will contain. So it will it will result for the stereo selectivity in the particular reaction. So it will result in the, so that it will enhance the stereo selectivity. It will enhance the stereo selectivity, that is the main function of your chiral catalyst. So it will enhance the stereo selectivity. So what is the stereo selectivity? I think all of you know. The stereo selectivity are basically two types: enhancer selectivity and diastereo selectivity. So that will be controlled by this chiral catalyst. Okay, so some are famous name reaction under this principle that are very famous, that we must know. So first is what known as Sharpless epoxidation. The one is what, Sharpless epoxidation. Your first chiral catalyst that are used for the under the name reaction, that is known as Sharpless epoxidation. So the Sharpless epoxidation, if you hear this word Sharpless epoxidation,
So for the Sharpless epoxidation, for the Sharpless epoxidation, so under this Sharpless epoxidation, what happened? For the Sharpless epoxidation, we generally do the enhancer selectivity in the molecule. So this is used for the to induce the, so the catalyst, what it will do, it will induce the enhancer selectivity in the particular molecule. It will induce the enhancer selectivity to induce enhancer selectivity. So what is the meaning of this particular part? What is the meaning of this particular part? Enhancer selectivity, how it can be increased, that will be seen in detail in the further lecture. So our second क्या है हमारे पास? The second one is what? The second name reaction that is very famous, that is known as asymmetric dihydroxylation. This is known as asymmetric dihydroxylation. So for the asymmetric dihydroxylation, in that name reaction also, in that method also, we are doing what? We are using a chiral catalyst, asymmetric dihydroxylation. ओके. ये दोनों क्या है, हमारे फंक्शनल ग्रुप का कन्वर्जन करने वाले हैं सिंपली यहाँ पे हम. तो हम क्या करने वाले हैं, दोनों ही केसेस में हमारे पास अल्कीन होगा. दैट अल्कीन विल बी कन्वर्टेड इनटू epoxide and dihydroxyl group. Okay, so that will be clearly seen, that will be explained in detail in the further lecture. So हम क्या करते हैं इसको डिटेल में पहले हम क्या करते हैं, पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमें क्या करना है सबसे पहले. सो दैट इज़ एसिमेट्रिक डायहाइड्रोक्सिलेशन. इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, इसमें हम क्या करते हैं, इनहांसर सेलेक्टिविटी और फेशियल सेलेक्टिविटी हम क्या करते हैं यहाँ पे हम देखते हैं. ठीक है. उसके बाद इवन दो देयर आर सो मेनी एसिमेट्रिक कैटालिसिस दैट इफ यू whether we know that there are lots of asymmetric catalysts which are used in the particular research field, but these are very famous one, so that you will find in various books. So this asymmetric dihydroxyl in this particular part also, generally we show the enhancer selectivity or in other word it is also called as facial selectivity. It is what? It is also called as facial selectivity. Means we have to see the re face or psi face. So this will be the facial selectivity. This will be a facial selectivity also. So the facial selectivity or enhancer selectivity, that will be controlled with the help of a particular chiral catalyst. So we'll see the, first of all we see the Sharpless epoxidation. Okay, so what is the Sharpless epoxidation that we have to see? So for the Sharpless epoxidation, we generally what we do in the Sharpless epoxidation, what generally we do, that we are converting a glycol. Generally we do the conversion of allylic alcohol to the epoxide. Allylic, that is epoxy alcohol, we are converting this allylic alcohol into epoxy alcohol. तो हम क्या करने वाले, उसको कन्वर्ट करने के साथ साथ हमें क्या करना है, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी हमें देखना है. ठीक है, सिंपली. तो आपको पता होगा कि जिसका भी हम इपॉक्सीडेशन करते हैं उसके लिए फेमस रिएजेंट कौन सा यूज़ करते हैं, आपको सबको पता है. तो सबसे पहला हम यूज़ करने वाले हैं, सबसे फर्स्ट हम यूज़ करने वाले हैं Sharpless epoxidation. Sharpless epoxidation. So in the Sharpless epoxidation, what happened? In the Sharpless epoxidation, what happened?
इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारे पास अलाइलिक अल्कोहल होता है, अब आई थिंक यू शुड नो द अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक अल्कोहल होता है क्या है वो हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो उसका हम कन्वर्जन करने वाले हैं किसमें, इपॉक्साइड में कन्वर्जन करने वाले। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि व्हाट आर द फेमस इपॉक्सीडाइजिंग रिएजेंट दैट यू नो। कितने लोगों को मालूम है कि उस ऐसे रिएजेंट के से हम क्या कर सकते हैं, इपॉक्सीडेशन कर सकते हैं। कितने लोगों को पता है कौन से रिएजेंट है जो, मेटा पर हाँ, बेंजोइक एसिड। मेटापर क्लोरोबेंजोइक एसिड, मतलब एम। हाँ सर। आप ये जानते होगे कि ये इपॉक्सीडेशन करता है। बियॉन्ड दैट व्हाट आर द फेमस रिएजेंट दैट कैन आल्सो डू द इपॉक्सीडेशन, बता सकते हो? और कोई है किसी को याद आएगा? अगर आपने सुना अगर होगा तो ठीक है, नहीं सुना है कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने ही वाले हैं आगे चल के, ठीक है। तो बताइए ये शॉर्टलिस्ट इपॉक्सीडेशन और कैसे हो सकता है, ठीक है। आई थिंक यू नो दैट कि हमारे पास, ठीक है, मेटाक्लोरोपारबेंजोइक एसिड तो वो तो होता ही है, हमें से पता है, लेकिन इपॉक्सीडेशन वो किसका करता है, कौन से वाले अल्किन का करता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्किन का करता है, इलेक्ट्रॉन रिच अल्किन का करता है। वो किसका करता है बताइए? अगर हमें ऑक्सीडेशन करना है तो वो कौन से पार्ट होगा? अच्छा ये बताओ मुझे कि आपका जो मेटाक्लोरोपारबेंजोइक एसिड होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है कि इलेक्ट्रॉन रिच होता है? कैसा होता है? रिच होगा ना। कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है। कंफर्म है तो बताइए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये भी चीज़ आपको पता चलेगी, ठीक है। तो आप जस्ट मतलब जजमेंट करोगे तो फिर आपका कॉन्सेप्ट वहीं का वहीं रह जाएगा। तो आपको क्या पता है, जस्ट इतना पता होगा आई थिंक कि आपको ये इपॉक्सीडाइजिंग क्या है, रिएजेंट है, बस इतना ही आपको मालूम होगा। आपको ये नहीं पता होगा कि जो इपॉक्सीडेशन करता है वो कौन से मतलब कौन से वाले अल्कीन को करता है और उसका नेचर क्या होता है। तो पहली बात तो ये सब क्लियर होना चाहिए, समझ में आए? तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको, अब हमने क्या किया, इपॉक्सीडेशन किया। अब ये हमारा क्या है, अलाइलिक अल्कोहल है, दिस इज माय अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक अल्कोहल दिस इज अलाइलिक अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसिडॉल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइसिडॉल। ये क्या है, इपॉक्सी क्या है हमारा, इपॉक्सी अल्कोहल है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइसिडॉल। तो जनरली वी आर डूइंग अ ऑक्सीडेशन। अब हमारे पास यहाँ पे दो फेसेस होते हैं, एक आपका अपर फेस है, एक आपका लोअर फेस है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि हमारे पास इसका ओरिएंटेशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग इसका इपॉक्सीडेशन होने वाला है। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, इस केस में हमें इनैंसियो सेलेक्टिविटी होगी और इनैंसियोमेरिक एक्सेस जो होगा इसका 99% होगा। समझ में आया? इसका जो इनैंसियोमेरिक एक्सेस होने वाला है वो कितना होने वाला है, 99% होता है विद दिस शार्पलिस्ट इपॉक्सीडेशन। तो हालांकि आपको सबको पता होगा कि इनैंसियोमेरिक एक्सेस हम वहाँ पे कैसे हमें मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको आई थिंक पहले से पता होगा। इनैंसियोमेरिक एक्सेस का फार्मूला क्या होता है वो भी आपको पता होगा, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या मिलता है, इस केस में हमें क्या मिलता है, 99% क्या मिलता है, हमें मिलता है इनैंसियोमेरिक एक्सेस मिलता है। तो ग्लाइसिडॉल ये आपका क्या है, ग्लाइसिडॉल है, ये पर्टिकुलर इपॉक्सी अल्कोहल है। तो इस केस में हमें जो मिलता है इनैंसियोमेरिक एक्सेस कितना मिलता है, इनैंसियोमेरिक एक्सेस मिलता है 99%। इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग कि अगर इनैंसियोमेरिक एक्सेस 99% मिल रहा है तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या हुआ, इसका मीनिंग, इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास दो आइसोमर होते हैं, मतलब इनैंसियोमर्स होंगे, या तो आर वाला होगा या तो एस वाला होगा। कि दो आइसोमर में से आपका आर या एस जो भी मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा बता सकते हो? अगर 99% इनैंसियोमेरिक एक्सेस है तो इसका मतलब आपका एक इनैंसियोमर कितना मिलेगा, कितना परसेंट होगा टोटल, 99.5% होगा, है कि नहीं? बोलो, आपका एक इनैंसियोमर क्या होगा, 99.5% होगा। कैसे? क्योंकि 99% आपका इनैंसियोमेरिक एक्सेस है, तो 1% क्या होगा, हमारा रेसिमिक मिक्सचर होगा, ठीक है। 1% हमारा क्या होने वाला है, रेसिमिक मिक्सचर, और उसमें आपका 50% आर होगा, 50% एस होता है, ठीक है। तो उस केस में आपका सपोज मान लो तो 99% ये है, तो आपका 1% क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर होगा, उसमें से 0.5% क्या हो जाएगा आपका
उसमें से जो आपका मेजर है वो हो जाएगा। तो जो 99% है उसमें 0.5 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा टोटल 99.5% आपको एनैन्सियोमेरिक एक्सेस मिलता है। इसका मतलब दैट्स वाई दैट इट इज़ वेरी वेरी प्रिफर्ड। और ये ऐसे इसके बेस पे इसलिए क्या होता है, बहुत सारे ऐसे CSIR नेट में गेट में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि व्हाट आर द इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट, जो हम लोग को पता है, ठीक है। अब आपके पास मैं आपको एक ये क्वेश्चन देता हूँ। आपके पास ये है एक, आपके पास ये अल्कीन है, ठीक है। आपको इसका इपॉक्सीडेशन करना है, इसका आपको इपॉक्सीडेशन करना है। मुझे बताइए कि कौन सा रिएजेंट आप यूज़ कर सकते हो, बता सकते हो? इसके लिए अगर इसका इपॉक्सीडेशन करना है तो आप कौन सा रिएजेंट यूज़ करोगे, बता सकते हो मुझे? बोलिए। अगर इसका आपको इपॉक्सीडेशन करना है तो आप मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड यूज़ कर सकते हो क्या, बताइए। आपको इसका इपॉक्सीडेशन करना है और दूसरा हमने इसका इपॉक्सीडेशन करना है, ठीक है। ये दो हमारे पास है इपॉक्सीडेशन करने के लिए। तो बताइए, अगर दोनों का आपने इपॉक्सीडेशन किया तो दोनों में हम कौन सा रिएजेंट प्रेफर करते हैं? ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये बताओ। ये जो सेंटर है ये इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो सबसे पहला काम आपको ये बताना है। तो ये जो हमारा सेंटर होगा दैट विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, है कि नहीं, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, है कि नहीं। तो ये जो सेंटर होगा हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो इसके पास पहुंचेगा कौन, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, दैट विल रिच, है कि नहीं। इसके पास कौन आने वाला है, जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा वही आने वाला है, ठीक है। उसी तरीके से हम इसकी अगर बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, बिकॉज हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसका कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमारे पास हमें क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन रिच के लिए कौन इपॉक्सीडेशन करने वाला है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के कौन सा करेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो नॉर्मली क्या होता है, अब मान लेते हैं कि चलो इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं टोटली इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब आपके पास ये अल्कीन है, इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये आपका अल्कीन कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एंड दिस विल बी इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन रिच अगर हम लोग इसका इपॉक्सीडेशन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज सम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट। हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो वो कौन सा होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वो होता है हमारा मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड होता है, समझ में आया। अगर हमें इसका इपॉक्सीडेशन करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। लेकिन अगर हमें इसका इपॉक्सीडेशन करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करते हैं NaOH एंड पेरोक्साइड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट, एक मिनट, हम क्या यूज़ करते हैं, H2O2 प्लस H2O2, तो हम लोग यूज़ करते हैं पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और ये यूज़ करते हैं। तो होता क्या है कि हमारे पास हमारा बेस का काम क्या होता है, बेस ने क्या किया, इस वाले प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो हमारे पास क्या सेंटर बचता है, हमारे पास ये सेंटर बचता है। अब ये क्या हमारा इलेक्ट्रॉन रिच है, ये सेंटर यही अटैक करेगा किसके ऊपर, ये अटैक इसके ऊपर करता है और यहाँ पे इपॉक्सीडेशन होता है। तो हमेशा याद रखना कि दो कंडीशन अगर आपको गिवन है तो हमारे पास क्या होगा। अब इसकी अगर हम बात करेंगे मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड में, तो इस केस में आपको मैंने बताया कि ये इस पर अटैक करता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। लेकिन अगर हम मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड की बात करते हैं तो मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड कैसा होगा, हमारे पास ये यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, ऐसा मान के चलते ये क्लोरीन है और मेटा पोजीशन पे आपको क्लोरीन है, और हमारे पास पर एसिड है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट क्या होगा, दिस विल बी। तो जब भी आपका अटैक होगा तो किस तरीके से होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट आपका यहाँ पे इपॉक्सीडेशन करने वाला है कि नहीं, यहाँ पे इपॉक्सीडेशन कौन करने वाला है, आपका ये वाला पार्ट करने वाला, समझ में आया। तो आप मुझे बता सकते हो कि जो हमारा इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कैसे हम डिसाइड करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे आपके पास जो सेंटर है वो कैसा सेंटर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये वाला पार्ट कि इलेक्ट्रॉन रिच है, ये बताओ। इसमें अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो ये हमारे पास
यहाँ पे ये क्या है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन रिच जैसा लगता है, लेकिन हमारे पास अगर अलाइलिक अल्कोहल है तो नॉर्मली इसमें ऑक्सीजन का इंडक्टिव इफेक्ट भी काम करेगा, है कि नहीं। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें इसको तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जैसा है, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर लेना पड़ेगा, लेकिन हम तो इसके लिए हम इपॉक्सीडाइजिंग जो एजेंट होता है वो हम क्या यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं हम लोग हाइड्रोपेरोक्साइड, टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड यूज़ करते हैं, समझ में आया। तो यही हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ द रिएजेंट दैट आर यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ पर्टिकुलर अलाइलिक अल्कोहल। अब ये हमने क्यों यूज़ किया, आगे चल के आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इसका नेचर भी उसी जैसा है। अब सेम टू सेम इसके जैसा ही काम कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल अलग था, और ये आपका ये जो अल्कोहल है अलाइलिक अल्कोहल ये बिल्कुल अलग है। तो इसमें हमारे पास एक ये प्लेन पे रहेगा और फेशियल इसमें सिलेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी विद द हेल्प ऑफ सम रिएजेंट। अब हम इसमें यूज़ करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें एक एक चीज़ को हमें देखना है ध्यान से। अब ये जो इसमें इस केस में हमारे पास जो भी ये वाला ऑक्सीजन होता है, अगर हम इसकी बात करें, इसमें से इलेक्ट्रोफिलिक, इसमें अगर ये आपका इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास इसके ऊपर अटैक करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी डबल बॉन्ड होता है तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन चाहिए हमारे पास। तो इसमें से ये कौन सा वाला इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इसमें से हमारा ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन होता है। तो अभी अभी आपने क्या देखा कि ये जो पोर्शन है ये क्या होता है हमारा, जो जाके इपॉक्सीडेशन करने वाला है वो हमारा क्या होता है, दैट इज़ द इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो ऐसे ऑक्सीजन को हमें यहाँ पे हमें जानना है कि वो कौन सा वाला ऑक्सीजन जाके वहाँ पे इपॉक्सीडेशन करने वाला है। तो इस केस में ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है, दिस इज माई इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन। अब यही क्या करने वाला है, ऑक्सीजन यहाँ पे इपॉक्सीडेशन करने वाला है, समझ में आया। तो इपॉक्सीडेशन अगर हो गया तो समझो हमारा इपॉक्सीडेशन हमें इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे जो ये वाला ऑक्सीजन है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोफिलिक है। अब इसी का हमें इपॉक्सीडेशन करना है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमें मिल गया। अब उसके बाद हमें देखना है कि हाउ वी कैन इंड्यूस इनएंशियो सेलेक्टिविटी। तो टू इंड्यूस द इनएंशियो सेलेक्टिविटी व्हाट वी आर यूजिंग, अगर हमें इनएंशियो सेलेक्टिविटी इंड्यूस करना है, इंक्रीज करना है, तो फॉर दैट टू इंड्यूस द इनएंशियो सेलेक्टिविटी दैट इज डन बाय, अगर हमें इनएंशियो सेलेक्टिविटी इंड्यूस करना है, इंक्रीज करना है, तो दैट इज डन बाय टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो हमें क्या यूज़ करना है, एक दूसरा रिएजेंट यूज़ करते हैं, टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड। आपने देखा होगा टाइटेनियम का जो कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये हमारा एक तरीके से टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड है, टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है। तो ये जो है रिएजेंट ये क्या करता है, दिस इज द रिएजेंट दैट इज टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड, टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड है ये, टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड। So this reagent will induce enantioselectivity selectivity। तो हम लोग क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं, इन ऑर्डर टू इंड्यूस enantioselectivity सेलेक्टिविटी वी ऐड 2 more रिएजेंट। तो उसमें से एक हमारा ये रिएजेंट है, ठीक है। तो इस एक ये रिएजेंट है, दूसरा रिएजेंट हमारा दैट इज DET। हम क्या यूज़ करते हैं, DET। सेकेंड रिएजेंट क्या है, हम यूज़ करते हैं DET। सेकेंड जो रिएजेंट है DET। DET का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बता सकता है DET का फुल फॉर्म क्या होगा, बताइए स्टूडेंट। DET क्या होता है, डाइथाइल टर्टरेट। क्या होता है, डाइथाइल टर्टरेट, इसका फुल फॉर्म होता है डाइथाइल टर्टरेट। तो डाइथाइल टर्टरेट, डाइथाइल टर्टरेट जो होगा ये क्या करेगा, कायरलेटी को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। मतलब ये दोनों क्या करने वाले हैं, दे विल इंड्यूस इनएंशियो सेलेक्टिविटी। सो दे आर व्हाट, दे इंड्यूस इनएंशियो सेलेक्टिविटी।
एनएसओ सेलेक्टिविटी। तो एक्चुअली में हमारा ये जो भी हमारा कैटलिस्ट है वो ये सब हम यूज़ कर रहे हैं। कैटलिस्ट जो हमारे हैं ये सारे मिलके काम कर रहे हैं इसमें, ठीक है। एक हमारा कैटलिस्ट नहीं है, सब एक साथ मिलके काम करेंगे तब जाके हमारा एक पर्टिकुलर कायरल सेंटर क्या होगा, कंट्रोल होगा, ठीक है। तो जो हमारा डीईटी होता है उसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। डीईटी का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हम डाइथाइल टॉर्ट्रेट यूज़ करते हैं तो नॉर्मली हमारे पास ये कैसा होता है, तो ये होता है एस्टर ऑफ डीईटी। तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास क्या होता है, एस्टर ऑफ डीईटी। तो टर्टरिक एसिड क्या होता है आपको पता ही है, तो उसका अगर हम लोग एस्टर यूज़ करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डाइथाइल टॉर्ट्रेट, डाइथाइल टॉर्ट्रेट। अब हमें क्या करना होता है, अब इस OH को क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है। इस OH को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें आपको पता है कि ये क्या है, सिमेट्रिकल है। इस केस में हमारे पास क्या है, सिमेट्री दिखाई दे रही, ठीक है। तो इसमें कायरल सेंटर आपको ये नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये क्या है, मीज़ो जैसा आपको कंपाउंड दिख रहा होगा, है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको अगर हमें और स्टीरियोकेमिस्ट्री को कंट्रोल करना है, अगर हम क्या करते हैं, इस OH को रिप्लेस कर देते हैं किसके, आइसोप्रोपोक्साइड से हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो जब हम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ इसको रिप्लेस कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली इस केस में हम OH को रिप्लेस कर देते हैं। OH ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट इज रिप्लेस्ड बाय O आइसोप्रोपोक्साइड, इससे हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास इसमें एक्चुअल में हमें क्या मिल जाता है, एक पर्टिकुलर स्टीरियोकेमिस्ट्री मिल जाती है। अब इसमें क्या आता है, आपको दो कंडीशंस देखने को मिलेंगे। इस कंडीशन में आपको, अगर आप इसको रिप्लेस करते हो तो आपको क्या मिलेगा, तो अगर जब आप इसको इससे रिप्लेस कर देते हो तो क्या हो जाएगा, ये इसका नेम चेंज हो जाएगा बस। जब आप इससे रिप्लेस कर दोगे, डीईटी क्या है हमारा इस तरीके से, अगर आप यूज़ करते हो प्लस डीईटी या माइनस डीईटी, उसके अकॉर्डिंग आपका ये होता है। तो नॉर्मली आपको दो यूज़ करना है इसमें से। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एक तो प्लस वाला यूज़ करते हैं, एक माइनस वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। ये दोनों स्टीरियोकेमिस्ट्री को क्या करेगा, कंट्रोल करने वाला है। अगर हमने क्या किया, इसको हमने इससे रिप्लेस कर दिया, तो आइसोप्रोपोक्साइड से हमने इस OH को रिप्लेस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, उसका नेम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बस, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो फिलहाल हम हमारे क्वेश्चंस में हमें कैसा देखने को मिलेगा वो सारी चीज़ें आपको पहले समझना है कि ये सब का फंक्शन क्या है। उसके बाद एक और चीज़ हम यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं हम लोग 4 एंगस्ट्रॉम मॉलिक्यूलर सीव यूज़ करते हैं, जो क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। ये क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर सीव जो होता है बेसिकली हमारे पास जो भी मॉइस्चर्स है उसको क्या करता है, ले लेता है। क्योंकि वाटर अगर रहेगा तो वाटर कैन इंटरैक्ट विद दिस टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। तो जो एक थर्ड वाला जो रिएजेंट है, एंड जो हमारा नेक्स्ट रिएजेंट है वो हम यूज़ करते हैं, जो रिएजेंट नहीं बोलेंगे हम उसको, एक तरीके से पॉलीमर बोल सकते हैं। तो हम यूज़ करते हैं एक थर्ड, हम यूज़ करते हैं 4 एंगस्ट्रॉम। हम क्या यूज़ करते हैं, 4 एंगस्ट्रॉम, 4 एंगस्ट्रॉम हम यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर सीव। 4 एंगस्ट्रॉम मॉलिक्यूलर सीव आपको ऐसा बहुत सारी जगह पे आपको देखने को मिलता होगा कि MS लिखा रहता है। MS का मतलब क्या होता है कि इतने साइज़ का हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ग्रेन्यूल्स जैसा होता है वो हम यूज़ करते हैं। तो इसका काम ये होता है टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर्स। इसका काम सिंपली ये होता है टू टेक द मॉइस्चर्स, टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। आपको पता है ये मॉइस्चर में क्या होता है, मॉइस्चर में आपको वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे इसको अफेक्ट करता है वो भी हम देख लेते हैं। अगर ये ना हो तो क्या होगा, आपका जो अगर ये नहीं होगा तो आपका वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, दिस वाटर मॉलिक्यूल विल दिस टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड हमारे पास है, अगर टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड, टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड, अगर ये वाटर होगा तो क्या करेगा, दिस वाटर विल react with this titanium isopropoxide and it will convert this titanium tetra isopropoxide into titanium dioxide. So ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, this will convert into
टाइटेनियम डाइऑक्साइड, इसको कन्वर्ट कर देगा टाइटेनियम डाइऑक्साइड में. सो मीन्स वी आर will be there will be decomposition of your particular titanium tetraisopropoxide. तो इसका मतलब जो हमारा कायरल रिएजेंट था, कायरल कैटलिस्ट था, वो उसकी एक्टिविटी पूरी ख़त्म हो गई. तो दैट्स वाई टू क्विंच दिस पर्टिकुलर पार्ट हम क्या करते हैं, तो अब ये क्या करेगा, दिस कैन नॉट रिएक्ट विद द डीईटी. तो एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो हमारा डीईटी है ये इसके साथ क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है. सिंपल सी बात है. और ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा जब ये टाइटेनियम टेट्राइसोप्रोपोक्साइड होगा तब कॉम्प्लेक्स बनाएगा. अगर हमने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया टाइटेनियम डाइऑक्साइड में, तो इट विल नॉट रिएक्ट. तो इस केस में ये क्या होगा, दिस विल नॉट रिएक्ट. सो इट कांट रिएक्ट विथ डीटी. तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. तो जब भी आप रिसर्च करते हो तो ये सारी चीज़ें देखोगे कि हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करना पड़ता है साप्लिस ऑक्सीडेशन में हमें, और सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन की रहती हैं. ठीक है, मॉलिक्यूलर सीव डीईटी प्लस डीईटी लिखा रहेगा वहाँ पे. ठीक है, और नॉर्मली आपको प्लस डीईटी लिखा रहेगा, और कभी ये आपको नहीं लिखा, कभी देखने को मिलेगा कि टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड भी लिखा है, लेकिन आपको प्लस डीईटी लिखा है तो समझ जाने का कि आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो सकती है, वहाँ से कंट्रोल. तो कभी कभी जब हम इसको इससे रिप्लेस कर देते हैं तो आपका क्या होता है, ये हो सकता है डाई आइसोप्रोपोक्साइड इथाइल टर्टरेट होगा. ठीक है, तो ये DIPT भी हो सकता है. तो हम जब इसको रिप्लेस करते हैं तो ये क्या हो जाता है, DIPT हो जाता है. तो डाई आइसोप्रोपाइल टर्टरेट हो सकता है, DIPT भी हो सकता है. तो अब नॉर्मली क्या होता है, आइसोप्रोपोक्साइड डाई आइसोप्रोपाइल टर्टरेट, समझे कि नहीं. तो कभी कभी आपको प्लस माइनस DT भी देखने को मिलेगा. तो जब आप इसको रिप्लेस करते हो तो ऐसा हो जाता है, बस और कुछ नहीं. ये दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, दैट विल इंड्यूस द इनिशियो सेलेक्टिविटी इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन. ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें हमें कंफर्म हो गई. अब हम बात करते हैं कि हम जो यूज़ करने वाले, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर कंडीशंस आएगा. अब उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करने वाले हैं, रिएक्ट करने वाले हैं. तो अब हमें क्या करना है, कुछ एग्जांपल्स लेना है और उसके थ्रू उसका एपॉक्सीडेशन करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नाउ हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास हमें जो भी अलाइलिक अल्कोहल होगा हमारा, तो अलाइलिक अल्कोहल के ऊपर भी थोड़ा सा रिसर्च हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है. तो हमेशा ध्यान में रखना, आपके पास चाहे ऐसा ज्योमेट्री हो चाहे तो मैं क्या करता हूँ, एक ज्योमेट्री को इस अलाइलिक अल्कोहल की ज्योमेट्री को मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इसको मैं फिक्स करता हूँ. अगर मैं इस अलाइलिक अल्कोहल की ज्योमेट्री को फिक्स करता हूँ, देखो हमेशा याद रखना, आप क्या करना, हमेशा इसको ये जो अलाइलिक अल्कोहल है, इस अलाइलिक अल्कोहल की ज्योमेट्री को फिक्स करना. तो इस केस में हमारे पास हम क्या यूज़ करेंगे, हमारे पास दो प्रोडक्ट बनने का चांसेस होता है. ठीक है, अब इसमें से हम DAT जो भी यूज़ करेंगे, वो DT जो भी यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है, हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपने अगर यूज़ किया, एक मिनट, अगर आपने यूज़ किया प्लस DT, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, उस केस में हमें क्या मिलने वाला है वो हमें देखना है, कौन सा इपॉक्साइड मिलेगा. और अगर हम माइनस DPT यूज़ करते हैं, DT यूज़ करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, वो हमें दो चीज़ें देखना है. तो हमारे पास दो चांसेस होते हैं. तो इपॉक्सीडेशन के हमारे पास दो चांसेस होते हैं. ठीक है, तो अगर हम यूज़ करते हैं ये वाला पार्ट, ठीक है, तो हमें इपॉक्सीडेशन इस तरीके से मिलेगा. हम क्या करते हैं, दोनों को इपॉक्सीडेशन करते हैं. तो इपॉक्सीडेशन एक तो अबव द प्लेन हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, बिलो द प्लेन हो सकता है. तो पहला इपॉक्सीडेशन हम क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि हमने क्या कर दिया, अबव द प्लेन किया हमने. तो आपका अलाइलिक अल्कोहल है और ये मान लो यहाँ पे एक अबव द प्लेन है. ठीक है, एक तो ये इपॉक्सीडेशन हो सकता है, दूसरा चांसेस क्या होगा कि आपका इपॉक्सीडेशन इस तरीके से होगा, बिलो द प्लेन होगा.
आपका इपॉक्सीडेशन क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा. सो दीज आर टू कंडीशंस दैट आर इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर पार्ट. ठीक है, तो ये आपका बिलो द प्लेन है, दिस इज माई बिलो द प्लेन. ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं, यहाँ तक सबको समझा. तो अब हमें क्या करना है, देखो इस केस में हमारा जो अटैक होता है वो फेशियल अटैक होता है. तो जब भी हम क्या करते हैं, हमारे पास साई फेशियल एक्टिविटी हो अगर हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, देखो याद रखना, जब भी आपके पास आपने यूज़ किया -dt, तो हम अटैक क्या करने वाला है, साई फेशियल. ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है. साई फेशियल अटैक के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, इसका हम री और साई फेस पहले हमें निकालना पड़ेगा. इसका री और साई फेस हमें क्या करना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा. तब जाके तो हमें ये समझ में आएगा कि हमारा साई फेशियल अटैक और री फेशियल अटैक के लिए हमारा कौन कौन सा dt यूज़ करना है. ठीक है, तो अगर आप इसको नंबरिंग करते हो तो ये पूरा ग्रुप हमारा क्या है, दिस टोटल ग्रुप इज़ नंबर्ड एज 1. इसको हम क्या नंबर करते हैं, 1. ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, सेकंड नंबर किसको दोगे आप, बताइए, सेकंड नंबर किसको दोगे आप. अगर आपने इसको 1 दिया तो दूसरा नंबर किसको दोगे आप, इस वाले कार्बन को. कौन से कार्बन को, ठीक है. और 3 किसको दोगे आप नंबर, जस्ट लाइक योर कार्बन कार्बन, आपने देखा होगा तो उसमें भी आपको आपने नंबरिंग किया होगा आई थिंक. तो जैसा हमने नंबरिंग वहाँ पे किया था वहीं इसी तरीके से यहाँ पे भी करना है. तो आप देख सकते हो 1 2 3 कैसे हुआ. तो आप मुझे बताओ कि आप अपने, इफ़ यू आर लुकिंग द मॉलिक्यूल फ्रॉम फ्रंट साइड, अगर अपने फ्रंट से देख रहे हो मॉलिक्यूल को, तो ये क्या है, ये जो आपका फ्रंट फेस है 1 2 3, इज इट साई फेस और री फेस, बताइए ये क्या है, स्टूडेंट बताइए, ये साई फेस है या री फेस है, बताइए स्टूडेंट, ये साई फेस है या री फेस है, बताइए. ये जो हम लोगों ने अभी रोटेशन किया, आर यू हियरिंग मी और नॉट, यस सर. तो बताइए आपका जो ऊपर का फेस है, आपने अगर फ्रंट से देख रहे हो मॉलिक्यूल को, तो ये आपका री फेस है या साई फेस है, बताइए सबसे साई पहले. फेस सर. तो ये साई फेस है, तो आपके पास ये साई फेस है. इसका मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको -dt लेना पड़ेगा. समझ में आया. तो साई फेस से अगर आप अटैक करना चाहते हो, अगर साई फेस पे क्या करोगे आप, इस पर इपॉक्सीडेशन करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा -dt लेना पड़ेगा. समझ में आया. तो मतलब जो अबव द प्लेन होगा, ये हमारा जो आया, ये अबव द प्लेन, ये क्या आया आपका, समझ में आया. ये जो आपका इपॉक्सीडेशन हुआ अबव द प्लेन, मतलब ये कौन सा फेस पे हुआ है, साई फेस पे हुआ है कि नहीं. ये हमारा जो इपॉक्सीडेशन हुआ ये कहाँ पे हुआ है, ये हमारा साई फेस पे हुआ. तो मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो रिएजेंट यूज़ करने वाले हैं हम वो यूज़ करेंगे साई फेशियल. अगर हमारे पास 2 चीज़ें होगी, एक तो साई फेशियल अटैक होगा, एक तो री फेशियल. ठीक है, तो ऑब्वियसली इट इज़ ऑब्वियस दैट कि साई फेस अगर अबव है तो री फेस क्या होगा, हमारा बॉटम होगा. बिलो होगा. तो दिस विल बी वेरी क्लियर. तो आपको साई फेस भी आपको कोई एक फेस समझ में आ गया तो समझ, ये ज्योमेट्री आपको इस तरीके से इसको अरेंज करके रखना है. तो अगर आप साई फेशियल अटैक करते हो तो आपको क्या लेना पड़ेगा, -dt लेना पड़ेगा. समझ में आया. तो हमेशा याद रखना, अगर आपके पास -dt है तो आप क्या करोगे, साई फेशियल मतलब इपॉक्सीडेशन कहाँ पे करना पड़ेगा, उसके साई फेस पे करना पड़ेगा. जब भी आपके पास +dt रहेगा तो आपको क्या करना है, उसके री फेस पे क्या करना है, इपॉक्सीडेशन कर देना. बस ये 2 चीज़ें आपको क्लियर रखना है, याद रखना. ठीक है, बस इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. और आपको ये दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड, उसका टेंशन लेना ही नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें कंट्रोल किसकी कौन करता है, ये हमारा. और ये रहेगा, और ये क्या करेगा, एक्चुअली में इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, किसके साथ, टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है. तो ये ऑब्वियसली ये रहने वाला ही है. ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ये आपका 2 क्या मिलेगा, इपॉक्सी अल्कोहल मिलने वाला है. तो इस तरीके से हमारी ज्योमेट्री जो हो जाएगी वो फिक्स होती है. ठीक है, अब हम क्या, हमें पता चल गया कि ज्योमेट्री हमारी फिक्स हो गई. अब हमारा ये क्या हो सकता है, अब आपको एग्जाम में क्या हो दे सकते हैं, दे विल गिव यू द मॉलिक्यूल इन द अनदर वे ऑल्सो, दे कैन गिव द मॉलिक्यूल इन द अनदर ज्योमेट्री ऑल्सो. ठीक है, तो कभी कभी आपको ऐसा गिवन होगा इन एग्जाम, यू कैन गेट दिस अलाइलिक अल्कोहल लाइक दिस ऑल्सो. आपको ऐसा भी गिवन हो सकता है. ठीक है, आपको ऐसा भी गिवन हो सकता है. समझ में आ रहा है, आपको ऐसा भी गिवन हो सकता है. दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है आपको, एक तो हम लोग ने देखा ही है, ऐसा भी दे सकते हैं.
ऐसा भी दे सकते हैं, ठीक है, और ऐसा भी दे सकते हैं आपको। आपको अलाइलिक अल्कोहल कैसा भी आपको गिवन हो, समझ में आ रहा है, तो ये देखना है आपको, रीफेस और साइफेसियल पहचानना पड़ेगा, समझ में आया, ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो आपको Yes, sir. एग्जाम में आपको ऐसे आड़े टेढ़े स्ट्रक्चर दिए रहेंगे अलाइलिक अल्कोहल को, तो बस अभी ज़रूरी नहीं कि हमारे पास ऐसा ही दिया है, तो हम ये एक रेफरेंस मान के चलते हैं कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर है और आपको याद रखना है। तो हमेशा याद रखना, आपके पास ज्योमेट्री क्या हो जाएगी और आपको क्या करना है, इसको याद रखना है, बी पॉजिटिव ऑल राइट करके याद रखना है। कैसे याद रखोगे, बी पॉजिटिव, है ना, आपको कैसे याद रखना है इसको, बी पॉजिटिव, ठीक है, बी पॉजिटिव ऑल राइट, ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो बी बी अगर मतलब दिया है मतलब बिलो, ठीक है, बी गिवन है मतलब क्या होता है आपका इपॉक्सीडेशन कहाँ पे होगा, बिलो होगा, और ये क्या है राइट में है ना, ये राइट साइड में है, दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो पोर्शन है इसका राइट में है। तो आपका अगर ये वाला पोर्शन राइट में है और आपको दिया हुआ है प्लस पॉजिटिव डीईटी दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसको आँख बंद करके आप इसको इपॉक्सीडेशन कहाँ पे कर दोगे, बिलो कर दोगे, समझ में आया, इतना क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है बस, अगर ये आपको याद है तो सारी चीज़ें कन्फर्म आप कन्फर्म करो। तो ऑब्वियस आपको क्या है, देखो अगर आपको इसमें टाइम लगता है, ठीक है, मॉलिक्यूल को अरेंज करने में टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, री और साई फेज देख लेंगे फटाक से। री और साई फेज देखा, हमें पता है कि अगर हमारे पास माइनस डी टी है तो हमें क्या करना है, सिंपली साई फेशियल इपॉक्सीडेशन करना है। अब वो साई फेशियल अगर बिलो आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो इपॉक्सीडेशन कहाँ होगा, बिलो होगा, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास साई फेस हमेशा आपको अबोव ही मिलेगा, साई फेशियल आपका क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, वो बिलो भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर रखना है पहले पर, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं एक दो, तो आपको समझ में आ गया। तो आपको टॉप बॉटम का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आपको सिर्फ री और साई फेस देखना है बस, समझ में आया, इससे आपका। तो एक नेट का क्वेश्चन आता है और बहुत बार आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो CSR नेट का ही क्वेश्चन है जिससे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपका क्या हो जाएगा, दूर हो सकता है। तो चलिए मानते हैं हमारे पास एक अल्कोहल है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सपोज आई हैव दिस अल्कोहल, आपके पास ये अल्कोहल है। अभी नेट में कैसा होता है क्वेश्चन, थोड़ा वो रिएजेंट बेस पे फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। तो उसमें बहुत सारे रिएजेंट के स्टेप्स होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये अल्कोहल है, हमें क्या करना है, इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिवन है और आपको गिवन है NaOET, आपको ए फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको कंडीशन दिया हुआ शार्पलेस इपॉक्सीडेशन, शार्पलेस इपॉक्सीडेशन, और आपको गिवन है प्लस dt दिया हुआ है, प्लस L प्लस dt आपको गिवन है, ठीक है। और आपको आइडेंटिफाई करना है B, ठीक है। और मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, फटाफट आप लोग इसको बताइए क्या होगा आंसर, और हमें आंसर करके बताना है, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व करते रहो, मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ आपको। तो ए जो है हमारा वो है, पहली बात तो पहला स्टेप आपको आ जाए तो वही बड़ी बात है कि नहीं। पहला स्टेप चलो मैं बताता हूँ आपको, टेंशन मत लो, पहला स्टेप मैं आपको बताऊँगा। तो ये हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ऑप्शन से आप उसको बताइए कि हमारे पास जो बनने वाला है, तो ये दो ऑप्शन है, एक में हमारा डबल बॉन्ड
मतलब यहाँ पे आप इस ऑप्शन से समझ में जाओगे कि आपके पास यहाँ पे सिस रिडक्शन हुआ है और यहाँ पे ट्रांस रिडक्शन हुआ है। तो हमेशा याद रखना, एक याद रखना बातें, कि अगर आपके पास अल्काइन हो और इसको बोलते हैं प्रोपेजाइल अल्कोहल, तो प्रोपेजाइल अल्कोहल जो होता है उसका रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में हो सकता है। ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज़ गिवन एज, तो इसका रिडक्शन होगा और ये जो रिडक्शन होता है वो ट्रांस होता है। ठीक है, चलो इतना तो मैंने आपको क्लू दे दिया, अब आगे का आप सॉल्व करो और मुझे बताइए कि ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, बताइए, अब मुझे बताइए ए और बी में से मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से कौन सा होगा करेक्ट। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से आपको कौन सा करेक्ट होगा और यू हैव टू टेल मी। ठीक है, अब तो मैंने बता दिया ना आंसर आपको, फर्स्ट और सेकंड में से क्या होगा, विच वन विल बी द करेक्ट, बताओ क्या करेक्ट होने वाला है। दिखाई दे रहा है कि नहीं सबको, इज इट विजिबल। अभी मैं ए प्रोडक्ट ही बना रहा हूँ, बी नहीं बना रहा हूँ। अभी मैं फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, ए प्रोडक्ट ही बना रहा हूँ। तो ये क्या करता है, ट्रांस फैशन में क्या करेगा, इसका रिडक्शन करेगा। तो इसमें से ट्रांस कौन सा है बताओ, इसमें से ट्रांस कौन सा है, कौन सा ट्रांस है हमारा, बताओ बोलिए स्टूडेंट, इसमें से ट्रांस कौन सा है, आपको नज़र आ रहा है अल्कीन, कौन सा वाला अल्कीन ट्रांस है, अलाइलिक अल्कोहल, ये आपका प्रोपेगिलिक अल्कोहल है। अब इसमें से ट्रांस कौन सा है आपका, ये वाला। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसका हाइड्रोजन देख लो ना, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ये क्या हाइड्रोजन, दिस इज ट्रांस, ये दोनों हाइड्रोजन क्या है हमारे, सिस है। ठीक है, ये हाइड्रोजन क्या है, ट्रांस है। तो इसमें से दो ऑप्शंस आपको क्या मिलेंगे, ट्रांस मिलेंगे, दो ऑप्शंस क्या मिलेंगे आपको, सिस मिलेंगे। तो इसमें से कौन सा वाला करेक्ट होगा हमारा, जो ट्रांस वाला है, वो दोनों ऑप्शंस हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। एक आपका कॉन्सेप्ट है रिडक्शन ऑफ प्रोपरजेलिक अल्कोहल विथ LAH, और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें देखना है। और सेकंड है आपका शार्पलेस इपॉक्सीडेशन। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको मैं अभी ऑप्शन देता हूँ, ये बताना है कि विच वन विल बी द इपॉक्सीड, आपका जो इपॉक्सीडेशन होगा। तो हमने इपॉक्सीडेशन किया, ठीक है, हमने इपॉक्सीडेशन किया और हमारे पास प्रोडक्ट मिल रहा है कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पे आप ड्रॉ करता हूँ। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, बस फटाफट ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए बताइए, तो इसमें इपॉक्सीडेशन यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है इपॉक्सीडेशन, इसमें इपॉक्सीडेशन यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह हुआ है इपॉक्सीडेशन। ठीक है, तो आपका इपॉक्सीडेशन कुछ इस तरीके से हुआ है। तो यहाँ पे ये बिलो द प्लेन हुआ है इपॉक्सीडेशन, और यहाँ पे हुआ है अबव द प्लेन। ठीक है, यहाँ पे भी अबव द प्लेन हुआ है इपॉक्सीडेशन, यहाँ पे बिलो द प्लेन हुआ है, यहाँ पे अबव द प्लेन हुआ है इपॉक्सीडेशन, और यहाँ पे भी अबव द प्लेन हुआ है। चलो बताओ कौन सा स्ट्रक्चर होगा हमारा, क्या लगता है, इजी है कि डिफ़िकल्ट है ये क्वेश्चन। स्टूडेंट प्लीज़ रिप्लाई करो, फिर नहीं तो नहीं आता तो मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि। अब इसमें से दो ऑप्शंस हमारे करेक्ट हो गए हैं। अब पहले ए को पहले क्या करो, ए को पहले फिक्स करो कि ए का हमारा कौन सा होगा। तो इसमें से मैंने आपको पहले बताया कि आपको ई और जेड अल्कीन में से कौन सा मिलने वाला है आपको,
ई मिलने वाला है, मतलब ट्रांस अल्किन मिलेगा, उससे आपको क्या मिल जाएगा, आपको अलाइलिक अल्कोहल मिल जाएगा। दिस इज माय अलाइलिक अल्कोहल मिल गया। तो हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 को नेगलेक्ट कर देंगे। सो द ऑप्शन 2 एंड 4 जो होगा वो क्या होगा, दैट विल बी नेगलेक्टेड। तो इसको नेगलेक्ट कर दो फटाफट। अब उसके बाद क्या करना है, अब दो ऑप्शन में से आपको क्या करना है, 1 और 3 में से ही हमारा आंसर होने वाला है। तो आपको बताना है कि उसमें से कौन सा होगा करेक्ट, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि DET क्या करता है, DET क्या करता है, सिर्फ अलाइलिक अल्कोहल का इपॉक्सीडेशन करता है। तो इसमें तो दोनों का कर दिया है, इसमें तो दोनों का कर दिया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, है कि नहीं, इसमें दोनों का कर दिया है ना, तो ये तो नहीं हो सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 3। इससे आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। अब हम आते हैं कि हमारा पर्टिकुलर जो आंसर है वो एक्चुअली में कैसे आया वो देखते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 है, करेक्ट आया। तो ऑप्शन नंबर 3 में हमारे पास ये है, ऑप्शन नंबर 3 है। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। लेकिन इसका इपॉक्सीडेशन क्यों नहीं हो रहा है, उसका मेन रीज़न ये है कि अलाइलिक अल्कोहल नहीं है ये। अगर अलाइलिक अल्कोहल होता तो इसका इपॉक्सीडेशन होता। अब ये क्या है, अलाइलिक अल्कोहल नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अंडरगो इपॉक्सीडेशन, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर है, वो हमारा आंसर है। और वो कैसे आया हम देख लेते हैं उसको, ठीक है। ऑप्शन 3 हमारा आंसर कैसे आया वो हम देख लेते हैं। ऑप्शन 3 जो होगा वो करेक्ट होगा, वो कैसे आया वो हम देखेंगे। तो अगर ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 में हमारे पास क्या है, ये वाला अल्कोहल है, क्या है, अलाइलिक अल्कोहल है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो ये हमारे पास अल्कोहल है। हम अगर इसको क्या करें, सो कोशिश करें इसका इपॉक्सीडेशन करने की। तो हमने क्या ले लिया, क्या ले लिया हम लोगों ने, प्लस DET लिया है। दिस इज माई प्लस DET। अब प्लस DET का मतलब क्या होता है, आप ऊपर चले जाओ देख लो, प्लस DET किसको इपॉक्सीडेशन करेगा, किसका, कौन से फेस में करेगा ये। प्लस DET क्या करता है, रीफेस में क्या करता है, इपॉक्सीडेशन करता है। तो यहाँ पे आपको पहले पहचानना पड़ेगा कि आपका री फेस और साई फेस कौन सा है, ठीक है। तो अगर हम इसकी में री और साई फेस की बात करें, ये हमारा हाइड्रोजन है, अगर री और साई फेस की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2 और ये हमारा 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये वाला फेज़ है ये हमारा क्या है, री फेस है कि नहीं। ये हमारा जो फेस है, फ्रंट फेस क्या हमारा री फेस है। तो हमारा इपॉक्सीडेशन क्या होगा, अबव द प्लेन होगा कि नहीं, बोलो स्टूडेंट। हमारा इपॉक्सीडेशन कहाँ पे होने वाला है, अबव द प्लेन। सो दैट्स वाई यहाँ पे इपॉक्सीडेशन कहाँ पे हो गया हमारा, अबव द प्लेन, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको समझना था, बस हो गया हमारा आंसर करेक्ट। तो यहाँ पे ही इपॉक्सीडेशन आपको कर देना है सिंपली। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, और कुछ नहीं है इसमें, और ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है इसमें। बस ये है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इस तरीके से, तब जाके आपको समझ में आएगा किसका इपॉक्सीडेशन करना है। तो आपका यहाँ पे क्या कर दिया, इसका रिडक्शन किया। अब अगर इसको ध्यान से देखोगे आप, अब एक्चुअली में हमारे पास अगर इसको ध्यान से देखोगे तो हमारे पास जो ऑप्शंस क्या है डिफरेंट, ये वाला जो होगा इसमें सारे के सारे वेज फॉर्म में ही दिया है। तो मतलब इसमें कन्फ्यूजन ही नहीं है आपको। थोड़ा सा कंफ्यूज क्या कर दिया उन्होंने, ये सब दे के ऑप्शन सारा इतना सारा दे के कन्फ्यूज़ कर दिया बस, ठीक है। उसी तरीके से आप एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं आप लोग सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। देखो क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, हमारा राइट है, और वो कैसे आया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो आप उसको सॉल्व करोगे और उसको बताना है कि इसका इपॉक्सीडेशन करने के बाद आपको क्या मिलने वाला, ठीक है। एक मिनट मैं आपको बता, ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि क्या हो। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बताइए इसका इपॉक्सीडेशन कहाँ पे होगा। अगर हमने क्या किया यहाँ पे, ये हमारे पास अल्कोहल है,
और दिस इज माई, इसको थोड़ा दूसरे वे में है बस, और कुछ नहीं। वहाँ पे प्लस डी पी था, यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस डी पी टी लेना है बस। शार्पलेस इपॉक्सीडेशन, तो शार्पलेस इपॉक्सीडेशन आपको यहाँ पे इसका कंडीशन है, और इसमें हम लोग को क्या गिवन है, माइनस डी आई पी टी दिया हुआ है, माइनस, तो आप समझ जाओ माइनस डी आई पी टी का मतलब क्या होता है, डाई आइसो प्रोपाइल टर्टरेट, ठीक है। तो इसका मतलब भी वही हुआ, कुछ नहीं ज़्यादा इसमें सोचने की बात। अब आपको ऑप्शंस में देता हूँ और आपको बताना है कि इसमें से किसका जो होगा इपॉक्सीडेशन होगा तो कैसे होगा, और इसमें आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कैसा होगा, ठीक है। तो चलिए मैं ऑप्शन देने जा रहा हूँ, और इसको तब तक आप लोग सॉल्व करो, तब तक आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। और सॉल्व करो, मुझे बताओ इपॉक्सीडेशन कहाँ पे होगा, अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन होगा, उसमें से आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताइए, सॉल्व करिए फटाफट, सॉल्व करके मुझे बताओ। हाँ, इसमें कुछ ज़्यादा, पहले आप मुझे सॉल्व करके बताओ, ऑप्शंस में देता हूँ, सॉल्व करो सॉल्व करो, स्टूडेंट सॉल्व कीजिए। अब उसके बाद हम लोग एसिमेट्रिक डायहाइड्रोक्सिलेशन पे भी आएंगे, इसके बाद हम लोग एसिमेट्रिक डायहाइड्रोक्सिलेशन पे भी आते हैं, जल्दी करो और बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबने सॉल्व किया? स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, बोलिए। नहीं आता है तो मुझे बताओ, मैं आपको करके बताता हूँ, कुछ थोड़ा रिस्पॉन्स तो दो। किया सर। क्या आया, अबव द प्लेन आया, बिलो द प्लेन आया? सर अबव द प्लेन ना, माइनस है। माइनस है हमारा। वो क्या है, ये जो आपका री फेस है कि साई फेस है वो बताओ। साई फेस ना सर। साई फेस है, ठीक है। तो चलो उसको, उसी को हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, अब देखो ऑप्शंस कुछ इस तरीके से आपको गिवन होते हैं। ऑप्शंस हमारे क्या होते हैं, जो गिवन होते हैं आपको 1 2 3, इस पहले बात तो वो नंबरिंग करके देखना है कि आपके पास, तो ऑप्शंस पहले मैं दे देता हूँ, उसके बाद मुझे बताओ। अब ऑप्शंस कुछ इस तरीके से गिवन है आपको, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो ऑप्शंस कैसा गिवन है, आपको ऑप्शन गिवन है इस तरीके से, आपको ऑप्शन इस तरीके से गिवन है। थोड़ा ऑप्शंस में आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट भी समझ में सीखने को मिलेगा आपको। एक तो ये है, और सेकंड ऑप्शन है आपका अमृता, मेघना यस सर। और ईरम, सब सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, आप लोग को समझ में आ रहा है कुछ किया कुछ? मैंने सर, किए? बोला ना आपको। नहीं नहीं, उस और बाकी लोगों को भी बोल रहा हूँ, ठीक है। सॉल्व करके आपको बताना है, तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आप इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट है। साहिल हो कि नहीं तुम? यस सर। सॉल्व कर रहे हो, बताओ क्या आएगा। अभी जो ऑप्शन दे रहा हूँ मैं उसका आंसर बताइए। ठीक है, इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन गिवन है। ठीक है, चलो अब बताइए
क्या आया आंसर आपका? इसमें से क्या आया आंसर बताइए। 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से क्या आंसर आया आपका? इस ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में से आपका आंसर क्या आया वो बताइए, सिंपली बताइए, बताइए जल्दी। अब देखो शार्पलेस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपने सुना होगा बहुत सारे। और आपको आपको अभी नेम रिएक्शंस रहेगा, उसमें पेन रीअरेंजमेंट आपने सुना होगा, पार्ट 1 में रहा। तो पेन रीएजेंट और पेन रीअरेंजमेंट और इसको जोड़ के आप एक बना देते हैं शार्पलेस ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो वो ज़रूरी नहीं कि आपके पास क्लियर रहेगा शार्पलेस ऑक्सीडेशन ही बोल के रखेगा, वहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके देते हैं, ठीक है। बताइए क्या आएगा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्या आने वाला है? चलो करो और बताओ। सर ऑप्शन 2। ऑप्शन ऑप्शन 2, 2। ओके ऑप्शन 2 आ रहा है। ऑप्शन 2, ठीक है, देखते हैं ऑप्शन 2 है क्या करेक्ट है आपका। आई थिंक ऑप्शन 2 नहीं होगा, ठीक है। फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं कैसे आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका पहले री फेस और साई फेस पहले देखते हैं, है कि नहीं। तो हमारे पास री फेस और साई फेस हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो एक बार री फेस साई फेस कंफर्म हो जाने तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको देखते हो तो इस केस में आपको री फेस और साई फेस क्या आया है वो आप मुझे बताइए, ये क्या करेक्ट है आपका? री फेस और साई फेस वो चेक करो। यहाँ पर सी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है? सर, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 आया है, ये ठीक है ठीक है ठीक है, चलो देखते हैं। अब ऑप्शन 3 आएगा, ऑप्शन 4 आया, वो हम यहाँ पे करके देखेंगे, ठीक है। तभी हमें समझ में आएगा कि कौन सा करेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपका नंबरिंग कर लेते हैं, क्योंकि नंबरिंग से ही पता चलेगा कि आपका री फेस और साई फेस है, ठीक है। और हमें गिवन है -DIPT, ठीक है। और आपके पास शार्पलेस ऑक्सीडेशन का कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3। तो हमारा जो अबव फेस है वो क्या है, अबव फेस हमारा क्या है बताइए। जो अबव फेस है वो री फेस है साई फेस है, चलिए बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए कि अबव फेस हमारा क्या है, री फेस है कि साई फेस री है? सर। रीफेस। री फेस है, यस हमारा री फेस है। तो हमारा जो इपॉक्सीडेशन होगा वो कहाँ होगा, अबव होगा कि बिलो होगा बताइए। जो हमारा इपॉक्सीडेशन होने वाला हो कहाँ होने वाला है, अबव होगा कि बिलो होगा? बताओ स्टूडेंट, मैंने यहाँ बता, आर बिलो ना सर, री होगा। बिलो होगा ना, माइनस है तो। बिलो। अगर माइनस रहता है तो कहाँ पे होता है इपॉक्सीडेशन, किस में होता है, साई फेस में होता है कि नहीं। अगर माइनस होता है तो साई फेस में होता है, अगर प्लस वाला रहेगा तो कहाँ पे होता है, री फेस में होता है। तो हमें बस ये दो चीज़ें याद रखना है, ठीक है। तो अभी जो हमारा ऊपर वाला जो फेस है वो कौन सा फेस है, री फेस है कि नहीं। तो अबव द प्लेन तो इपॉक्सीडेशन नहीं होने वाला, इपॉक्सीडेशन कहाँ पे होगा, बिलो द प्लेन होगा, है कि नहीं। तो हमें इपॉक्सीडेशन को कहाँ पे करना पड़ेगा, बिलो द प्लेन। तो चलिए हम इपॉक्सीडेशन बिलो द प्लेन करते हैं। इपॉक्सीडेशन हम इसको बिलो द प्लेन कर लेते हैं। तो अगर हम बिलो द प्लेन करते हैं इपॉक्सीडेशन, इसका मतलब हमारा OH इस तरीके से हमारा इपॉक्सीडेशन हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको गिवन है, यहाँ पे गिवन है क्या बताइए, ऐसा कोई ऑप्शन आपको गिवन है यहाँ पे? नहीं सर। नहीं गिवन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसमें, और कुछ नहीं, ठीक है। तो बिलो द प्लेन है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये ज्योमेट्री आपको पता ही है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, अब इसको देख रहे हो। अब ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या है हमारा, तो अगर हम क्या करें, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दें, थोड़ा सा इसको घुमा दे तो क्या होगा बताइए। अगर इसको हम घुमाएंगे तो क्या होगा, ये आपको देखना है। अगर आप इसको घुमाते हो, थोड़ा सा चेंज करते हो, कितना डिग्री एंगल थोड़ा सा चेंज करते हो, क्योंकि आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो हमारे पास टोटल
कितने यहाँ इस कार्बन पे कितने बॉन्ड हैं, इस कार्बन पे कितने बॉन्ड है टोटल, ठीक है, ये और ये है ना। और हमारा क्या है यहाँ पे, और कोई बॉन्ड है यहाँ पे, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा कि नहीं बताइए, इस वाले इपॉक्सीडेशन पे, इस वाले जंक्शन पे आपका हाइड्रोजन होगा कि नहीं, हाइड्रोजन होगा कि नहीं बताओ, यहाँ पे हाइड्रोजन था कि नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन था ना। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन था तो इसका मतलब यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, तो वो हाइड्रोजन कहाँ हो रहा होगा, अबव द प्लेन होगा, है कि नहीं। आपका हाइड्रोजन कहाँ पे रहा होगा, वो अबव द प्लेन रहा होगा, दिस विल बी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन रखते हैं। तो अब आपको क्या करना है, देखो सिंपली क्या करना है, ये जो प्लेन पे है, ये जो प्लेन है आपको दिखाई दे रहा है, अब उसी तरीके से यहाँ पे भी जो भी हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे OH रहेगा आपके पास, और ये OH क्या है, प्लेन पे है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको टिल्ट करना है, इसको टिल्ट करोगे तो ये कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा, है कि नहीं। अगर इसको आप प्लेन पे लेके आते हो तो ये कहाँ पे जाएगा, ये एक्चुअली में कहाँ पे जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, जहाँ पे इसको हिंड्रेंस कम मिलेगा, है कि नहीं। ऐसा तो नहीं होगा कि ये जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, किसको, इस वाले पोजीशन को टिल्ट करेंगे, थोड़ा सा इतना सा पार्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा टिल्ट करिए, इसको ऊपर लेके आए, ये प्लेन था, इसको प्लेन को हम लोग थोड़ा सा, ये वाले पार्ट को हम लोग क्या करें, ऊपर लेके आए। तो ऊपर जब लेके आएंगे तो एक्चुअली में इपॉक्साइड जो है हमारा, ये वाला पोर्शन हमारा प्लेन पे आ रहा है। जब ये प्लेन पे आ रहा है तो ये जो पार्ट है OH हमारा प्लेन पे है, वो थोड़ा सा क्या होगा, इससे रिपेल करेगा। तो रिपेल करने के लिए इसको भी थोड़ा सा और ऊपर आना पड़ेगा, है कि नहीं। इसको आप अगर क्या कर रहे हो, ऊपर ले रहे हो, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा। तो ये क्या कहाँ पे जाएगा, ये आपका अबव जाएगा और ये आपका प्लेन पे चला जाएगा। तो मतलब एक्चुअली में हम क्या करेंगे, इसमें हम चेंजेस कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखो, कहाँ गया हमारा कर्सर, हाँ। तो अब एक्चुअली में क्या होगा कि आप क्या कर रहे हो, आप इसको प्लेन पे लेके चले आए, ठीक है। और एक्चुअली में हमारा ये बिलो द प्लेन ही है, समझ में आया, ये बिलो द प्लेन ही है, इपॉक्साइड हमारा बिलो द प्लेन ही है। लेकिन हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा टिल्ट करके हम इसको लेके चले आए, इसको लेके चले आए प्लेन पे। तो जब इसको प्लेन पे लेके आएंगे तो हमारे प्लेन पे हमारे पास क्या है, ये हमारा OH है, तो इस OH को रिपल्सन होगा प्लेन पे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अबव आना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अबव आना पड़ेगा। तो अबव आने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसा आना पड़ेगा, समझ में आया, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। तो हमारा जो करेक्ट स्ट्रक्चर होगा, आप मुझे बता सकते हो क्या होगा, फर्स्ट। समझ में आया। तो ये थोड़ा सा कैसा है सारी चीज़ें वही है, लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा यहाँ पे रोल है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो नॉर्मली आपको इपॉक्साइड जो बनेगा, जरूरी नहीं कि हमेशा बिलो द प्लेन अबव द प्लेन हो, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ठीक है, समझे। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि जो आपका इपॉक्साइड और OH है ये दोनों सेम प्लेन में रहेंगे। तो पहली बात तो ये 2 और 3 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 और 3 तो हमारा बिल्कुल कैंसिल हो जाता है, और बचता हमारे पास है 1 और 4। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा बिलो द प्लेन इपॉक्सीडेशन हो रहा है, तो बिलो द प्लेन हमारे रहेगा इपॉक्साइड, तो यहाँ पे बिलो द प्लेन है, ठीक है। तो ये हमारा जो इपॉक्साइड है, ये फॉर्मेशन ये भी करेक्ट है, लेकिन ये क्या है, री फेस पे अटैक, री फेस पे आपका मतलब हम अगर हम क्या लेते प्लस DIPT लेते तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलता है, समझ में आया, क्लियर है यहाँ पर, यहाँ तक सबको क्लियर है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये शार्पलेस इपॉक्सीडेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। तो ठीक है, आज हम लोगों ने क्या क्या देखा वो देख लो। तो उस केस में आप लोगों ने जो कायरल कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। इपॉक्सीडेशन करना है हमें तो सबसे पहले हमारे पास रिएजेंट का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा रिएजेंट आया और किसका क्या करना है। अब DET की जगह पे DIPT दिया है तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि वो कुछ और अलग है, नहीं, वो सब कुछ सेम है बस यहाँ पे। और इपॉक्सीडेशन करने के लिए हमारे पास कौन कौन से रिएजेंट होते हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए थोड़ा बहुत, उसके ब्रीफ आइडिया होना चाहिए थोड़ा बहुत। और उसके बाद हमारे पास जो एलाइलिक अल्कोहल है तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आपका एलाइलिक अल्कोहल कैसे भी गिवन हो, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर रीफेसियल है तो रीफेस है तो आपको माइनस वाला प्लस DET लेना है या प्लस DIPT लेना है। और अगर आपके पास साई फेस है तो आपको क्या यूज़ करना है, साई फेस से अगर आपको इपॉक्सीडेशन करना है तो आपको क्या यूज़ करना है,
माइनस डी टी या माइनस डी आई पी टी ले रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे थोड़ा सा इपॉक्सीडेशन करके देखा और इस तरीके से हमें मिला है। तो इपॉक्सीडेशन करना, इसी की इपॉक्सीडेशन का जो क्वेश्चन आने वाला है आपको इसी तरीके से मिलने वाला है, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब हम लोग, चलो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एसिमेट्रिक डायहाइड्रोक्सिलेशन, और जिसमें हम लोग OH ग्रुप लेके आने वाले हैं, इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, 2 OH ग्रुप इंट्रोड्यूस करने वाले हैं ऑन द अल्कीन, ठीक है। अब वो अल्कीन में OH ग्रुप अबव द प्लेन करना है या बिलो द प्लेन करना है, दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय एसिमेट्रिक कैटलिस्ट जो हम यूज़ करने वाले हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों एक रिएक्शन हमारा हो चुका है कायरल कैटलिस्ट का, दूसरा रिएक्शन है जो कि एसिमेट्रिक डायहाइड्रोक्सिलेशन। उसके बाद हम लोग कुछ हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जिसको एसिमेट्रिक रिएक्शन से हम लोग उसको प्रिपेयर करने वाले हैं, वो देखेंगे हम लोग। और लास्ट में हमारा बचेगा कायरल ऑक्सिलरी अप्रोच। तो ये 3 अप्रोच है जो हम क्या करना है हमें, एसिमेट्रिक कैटालिसिस, एसिमेट्रिक कायरल पूल अप्रोच, और उसके बाद ऑक्सिलरी कायरल ऑक्सिलरी अप्रोच। ये 3 अप्रोच हमारे पास है। उसके बाद हमारा एसिमेट्रिक ख़त्म हो जाएगा सिंथेसिस का, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका ये वाला चैप्टर, फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग ये बताओ मुझे कि जो है पूजा मैम का ये एक दो यूनिट ख़त्म हुआ कि नहीं, कितना यूनिट ख़त्म हुआ? पूजा मैम का यूनिट कितना ख़त्म हुआ? 1 यूनिट खत्म हुआ। अच्छा, 1 यूनिट ख़त्म हुआ, ओके। अच्छा, 1 यूनिट ख़त्म हो गया ना, ठीक है। मैम का तो थोड़ा फास्ट जाना चाहिए, फिर भी मैम स्लो ही, मतलब कितना घंटा लेते हैं? सर वो प्रॉब्लम्स ले रही है ना सॉल्व करके। ओके, तो ठीक है ना, आपको लिए प्रैक्टिस चाहिए, और क्या, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। देखो ये हमारा थ्योरेटिकल है तो थोड़ा सा कैसा है ना, आपको भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थोड़ा आप जाओ नेट के क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। क्रैम्स रूल के क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, किसी ने क्रैम्स रूल का क्वेश्चन सॉल्व किया कि नहीं? क्रैम्स रूल का आपने क्वेश्चन सॉल्व किया? बहुत सारे लोग, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे क्रैम्स रूल के। तो क्रैम्स रूल का क्वेश्चंस निकालो और उसको सॉल्व करना। अगर नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी, और मैं आपको इसका बताऊंगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन 50% MCQ होने वाला है और 50% जो है थ्योरी होने वाला है। तो ऑब्वियसली आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ट्राई करो, प्रैक्टिस करो आप लोग, ओके। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस लेक्चर, सो थैंक यू सो मच। लेक्चर 5 बजे लो ना। 5 o'clock को, ठीक है। मैं अगर 5 o'clock तक अगर हाँ फ्री हो सर। जाता हूँ तो मैं आपका 5 o'clock को लेता हूँ। लेकिन मैम तो 4 बजे ले रहे हैं, तो हाँ कंटिन्यू सर। मैम तो 4 मैम कभी कभार लेती है सर।